मेरा ये बचपन का सपना है, सो माई चाइल्डहुड ड्रीम दैट हैज टर्न इनटू रियलिटी. So it is an amazing feeling. I'm just feeling so proud that I'm joining judiciary, and I think nothing could be as privileged as being a part of this institution. हमने मंदिर के सामने खड़े होके मैंने अपना गेजेट खोला और मैंने देखा कि मेरी सिलेक्शन होगी. सो मेरी मम्मा बहुत ओवर एक्साइटेड हो गए, उनको तो रेदा अटैक ही आने वाला था इतनी खुशी के मारे. एंड बट मैंने आई वाज नॉर्मल, आई वाज नॉट गेटिंग इमोशनल एंड और आई वाज जंपिंग विद जॉय बिकॉज आई वाज वेरी नॉर्मल. आई हैड टू हैंडल माय मॉम बिकॉज शी वाज ओवर एक्साइटेड एंड आई वाज लाइक कि उनको कहीं कुछ होना चाहिए. सो आई हैड टू रिमेन calm and composed. It's okay मम्मा, बी नॉर्मल. ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗੀ. ਲੋਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਮੇਰਾ. ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ. ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਗ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿਲਾਇਆ. ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚਾਹਤ ਛਾਬੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 28ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਜੱਜ ਬਣੇ ਨੇ. ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਚਾਹਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ. ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ? थैंक यू सो मच. ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मेरा ये बचपन का सपना है, सो माई चाइल्डहुड ड्रीम दैट हैज टर्न इनटू रियलिटी. सो इट इज एन अमेजिंग feeling. I'm just feeling so proud that I'm joining judiciary, and I think nothing could be as privileged as being a part of this institution. ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ ਚਾਹਤ, ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ. ਉਸ ਦੌਰਾਨ 8:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ. ਉਦੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? हाँ जी, जब तकरीबन 8:30 बजे रिजल्ट आया एंड तब मैं और मेरी मम्मा हम बाज़ार से घर आए थे. एंड फिर हमने मंदिर के सामने खड़े होके मैंने अपना गेजेट खोला और मैंने देखा कि मेरी सिलेक्शन होगी. सो मेरी मम्मा बहुत ओवर एक्साइटेड हो गए, उनको तो रेदा अटैक ही आने वाला था इतनी खुशी के मारे. एंड बट मैंने I was normal, I was not getting emotional and or I was jumping with joy because I was very normal. I had to handle my mom because she was over excited and I was like कि उनको कहीं कुछ होना चाहिए. So I had to remain calm and composed. It's okay मम्मा, be normal. So of course मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई एंड फिर मैंने अपने पापा को, अपने रिलेटिव्स को, सबको कॉल करके बताया एंड फिर वो मुझे विशेस करने के लिए मेरे घर पे आए, तो हमने इकट्ठे मिलके एंजॉय किया. ਮੈਮ, ਪ੍ਰੀ ਤੇ ਮੇਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ. ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ. ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ? ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ? बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम था. रेदो सिर्फ ये 3 दिन ही नहीं, पूरा की पूरी जर्नी, लाइक हमारे ऑलमोस्ट 12 मंथ्स हो गया जबकि नोटिफिकेशन आई पंजाब की, तब से लेके अब तक वो बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम रहा है. एंड हर एक दिन एक नया स्ट्रेस होता था, इतना बहुत ही टेंस्ड इन्वायरमेंट था. एंड स्पेशली जब रिजल्ट आने वाला था तब तो हार्ट बीट तेज रहती थी एंड बहुत ही ज़्यादा, वो तो आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि कितना एंजाइटी होती थी कि अभी कैसा रिजल्ट आएगा, होगा सिलेक्शन या नहीं, बिकॉज योर लाइफ इज़ एट स्टेक. इतनी मेहनत की होती है. सो बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम होता है ये. ਮੈਮ, ਪ੍ਰੀ ਤੇ ਮੇਨਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਚਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ. ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਉੱਥੇ? एक्चुअली मैं
स्टार्टिंग से बात करती हूँ, जब मेरा मेंस का टाइम था तो मुझे बहुत ही एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स होने लग पड़े थे। तो मेरे लिए उनके साथ डील करना बहुत ही मुश्किल था। बट उसके बाद जब मैंने मेंस का एग्ज़ाम दिया तो मैंने, सिंस मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिल गया था, मेंस के और इंटरव्यू के बीच में टाइम था, तो मैंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की, सेल्फ काउंसलिंग की एंड मैंने अपने आप को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया। मैंने अपनी एंजाइटी, अपने पैनिक, हर चीज़ पे कंट्रोल किया। तो मैंने बिल्कुल ही अपनी अप्रोच डिफरेंट कर दी थी इंटरव्यू को डील करने के लिए। आई स्टार्टेड स्टेइंग हैप्पी, कॉन्फिडेंट। मतलब स्टडी के साथ साथ मैं बहुत ही और भी मैं अपना इंजॉय करती थी, डांस करती थी, बहुत ही मैंने उसको लाइटली लिया। लाइटली मतलब स्टडी के बेसिस पे नहीं, वो मैंने बहुत अच्छे से डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की है। रात के 4-4 बजे तक जाग के मैंने पढ़ाई किया है, बट मैंने बहुत ही खुश रह के उसकी तैयारी किया है। एंड इंटरव्यू से पहले सभी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी थी। मैं उनमें अपने आप को देख रही थी कि मैं भी पहले ऐसी होती थी एंड वो बहुत डरे हुए थे, घबराए हुए थे, बट मेरे चेहरे पे एक ब्रॉड स्माइल थी। आई वाज स्माइलिंग कि फाइनली वो टाइम आ गया इंटरव्यू का एंड आई हैव टू गिव माई 100%। सो मैं एक बहुत ही ब्राइट स्माइल के साथ अंदर गई एंड मैं स्माइल के साथ ही बाहर आई। एंड वो बहुत ही एक अच्छा इन्वायरमेंट था अंदर। जो जजेस का पैनल था वो बहुत ही अच्छे थे। बिल्कुल भी वहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगा कुछ जैसे स्कैरी इन्वायरमेंट या टेंस इन्वायरमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं था। दे वर वेरी पोलाइट, हम्बल पीपल एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ? ਪ੍ਰੀ ਤੇ ਮੇਨਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 4-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਸੀ? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक मैंने अपनी स्लीप प्रॉपर ली नहीं। मैंने अपनी स्लीप पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है। सो मैं पूरा दिन नहीं पढ़ती थी नॉन स्टॉप, बट मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगी। आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है एंड हैप्पी रहना, हैप्पीनेस इज़ अ की टू सक्सेस, आई बिलीव दैट। ਹੁਣ ਸੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? अब खुशी के मारे वैसे नींद नहीं आ रही है। सो मैं वैसे ही जागती रहती हूँ, अभी रात को नींद नहीं आती है। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? जैसे स्ट्रेस हमको बहुत ज़्यादा होता है इस टाइम पे। सो पहले तो आपको कोई भी आपकी हॉबी है उसको परस्यू करते रहना चाहिए साइड बाय साइड। जैसे मेरी हॉबी डांसिंग है, तो मैं बीच में से 10 या 15 मिनट निकाल के डांसिंग करती थी अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। एंड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई रिकमेंड दैट बाकी सभी एस्पिरेंट्स को कि प्लीज़ फोकस ऑन योर स्लीप, बिकॉज आई ऑलरेडी I have undergone that time जब मुझे बहुत ही एंजाइटी हुई है, पैनिक हुआ, एंड बिकॉज ऑफ द स्लीपलेसनेस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर स्लीप। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਜ ਬਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲੀਗਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ? एक्चुअली मेरा बचपन से ही मैं बहुत ही ज़्यादा स्टूडियस रही हूँ। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है एंड ये मैंने सोच रखा था कि मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है, एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन ओनली। मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है एंड मुझे एक्सेल करना है, बट द गोल ऑफ लाइफ वो मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया था। सो देयर वर मेनी कजन्स ऑफ माइन, माई एल्डर कजन्स, एंड दे ऑल वर ऑप्टिंग फॉर लॉ। सो आई गॉट टू नो दैट देयर इज़ अ फील्ड, कुछ ऐसी लॉ की फील्ड होती है, जज की पोस्ट होती है। सो फॉर द नेम सेक ओनली, मतलब वो मेरा गोल नहीं बना। मैंने स्कूल में ऐसे टीचर पूछते थे अब क्या बनना चाहते हो, तो बच्चे कहते थे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, तो जज कोई नहीं बोलता था। तो मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया कि मैं जज बनूंगी। बट फिर इवेंचुअली धीरे धीरे मैंने इसे अपना लाइफ का गोल बनाया। व्हेन आई रियलाइज दैट जुडिशरी इज अ सर्विस टू द नेशन, ये बाकी सर्विसेज की तरह नहीं है, बिकॉज यू होल्ड ए पोजीशन वेयर बाय यू कैन ब्रिंग अ चेंज इन अदर पीपल्स लाइफ, यू कैन बी अ रे ऑफ होप इन अदर्स लाइफ, एंड यू कैन ऑल्सो पुट एन एंड टू ऑल द हार्डशिप्स एंड मिजरीज दे हैव बीन अंडरगोइंग फ्रॉम सो मेनी ईयर्स टुगेदर। सो आई थिंक इससे अच्छा और कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता। एंड मैंने तब डिसाइड कर लिया था कि मुझे लॉ ही करनी है एंड मुझे जज ही बनना है। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਹਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਹਤ ਦੇ ਮਦਰ ਸੰਗੀਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਧੀ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਅੱਜ ਜੱਜ ਬਣੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਜੱਜ ਦੇ ਮਦਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ?
ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਲੋਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ बेटी कुछ ना कुछ नाम जरूर रोशन करेगी मेरा। और मेरे सिंगल चाइल्ड है ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਗ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿਲਾਈ ਹੈ। मैं इन्हू फर्स्ट डे तो कहती सी बेटा मैं तेरे लिए संघर्ष कर रही हूँ, ते कोई एहसान नहीं कर रही, पर तू मैं ते एहसान कर दी कि मेरा प्राउड ना सीना चौड़ा हो जाए। और अज इन्हें मैंने वो खुशी दी है जे इदा दी बेटियां होण, मैं कहनी घर घर च भावें हर किसी घर बेटी पैदा हो। मैम मैं जो चाहत दे नाल गल कर रही थी, वो कहंदी जो रिजल्ट आया मेरे मदर बहुत ओवर एक्साइटेड सीगे, इदां लग रहा सी इन्हां नूं सामना मुश्किल हो रहा सी। उस समय दी खुशी बयान करो कि किवें दा लग रहा सी जदों तुहाडी धी ने दस्सिया कि मैं जज बन चुकी हां, मेरी सिलेक्शन हो गई है। मैम ऐसे हुआ कि सुबह मैं जब ब्रेकफास्ट बना रही थी तब इसने मुझे आवाज़ लगाई, इसको पता चल गया कि आज रिजल्ट अनाउंस हो जाना। इसने मुझे आवाज़ लगाई कि मम्मा आज आ रहा है, मुझे लगा शायद मेरा पार्सल आ रहा है इसलिए कह रही मैं को ओके। फिर कहती मम्मा आज आ रहा है, मैं फिर ओके। मम्मा आपको पता नहीं क्या आ रहा है, फिर मैं किचन छोड़ के गई, क्या बात है क्या आ रहा है? कहती मम्मा आज मेरा रिजल्ट आ रहा है। तब तो मेरे को खाना बनाना भूल गया, फिर बनाया जैसे तैसे करके बनाया, पर मेरे गले के अंदर एक निवाला नहीं निकला। उसी वक्त मैंने इसको कहा बेटा आप जल्दी से अपना नहा दो, मैंने मंदिर जाना है। फिर मैं जाके मंदिर बैठ गई, देवतला वहाँ पर मत्था टेका, क्योंकि मेरे को भगवान के ऊपर बहुत नीचा है कि जहाँ तक इतना स्ट्रगल किया, मेरी बेटी ने इतना संघर्ष किया है, बचपन से मेरा सपना पूरा करने में लगी, भगवान हमें निराश नहीं करेगा। और यकीन मानो जैसे रात 8 बज के तो मैं थोड़ा सा जैसे बैठ गई बेड के ऊपर कि अभी तक तो अनाउंस नहीं हो रहा, हो सकता है जी आज ना आए कल आए। जैसे बैठी तभी इसने कह दिया मम्मा रिजल्ट आ गया। हम भाग के अपने घर के मंदिर में गए, वहीं पर इसने रिजल्ट अपना देखा और जैसे इसने कहा मम्मा मैं जज बन गई, उस खुशी को मैं बयान नहीं कर सकती कि मुझे ये लगा कि मैं जमीन से उठ के आसमान में पहुंच गई, मेरी बेटी जज बन गई। आप सोच नहीं सकते इस बच्ची ने कितना संघर्ष किया। जब बीमार हुई, इस कंडीशन इतनी खराब थी, डॉक्टरों ने मुझे इसका जवाब दे दिया था, पर तब भी मुझे भगवान पर भरोसा था, मैं डामाडोल नहीं हुई। सभी मेरे बहन भाई जो थे डर गए, इन लोगों ने मेरा हर वक्त सपोर्ट किया है, मेरे जीजू मेरी बहन, ये लोग इतना डर गए पर मैं नहीं डरी। मुझे भगवान पर था विश्वास कि अगर मेरे में प्राण है तो मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, इसके जाने से पहले मैं निकल जाऊँ। और जज बनने पर भी मैंने इसको 2 दिन पहले कह दिया था कि मुझे भगवान ने बता दिया कि तूने सिलेक्ट हो जाना। जब मेंस भी क्लियर होना तब भी मैंने इसको बता दिया था, पर खुद एक कॉन्फिडेंस नहीं आता जब तक रिजल्ट आपके सामने नहीं आता। जैसे इसने कहा मेरे लिए तो वो इतनी खुशी थी कि मैं पागल सी हो गई। अगर मेरी बेटी मुझे ना संभालती, सच में मुझे अटैक आ जाता। मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे हो क्या रहा है। मेरे नाल चाहत दे मासी जी भी मौजूद ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ है। हाँ जी मैम, किवें दा लग रहा है? अज वो जज बन चुके ने, चाहत किवें दी खुशी हो रही है, किवें दा महसूस हो रहा है? मेरे को तो इतनी, जब इसका ना मेरे को फ़ोन आया मेरी सिस्टर का भी रिजल्ट आ गया, तो मैं भी है ना बैठी भगवान को सब प्रे कर रही थी। हर वक्त प्रे तो बच्चों के लिए होती है, तो मैं कहा चलो बच्चे ने बहुत स्ट्रगल किया है तो इसको अब मंजिल मिलनी चाहिए। तो इसके मौसा जी भी मेरे साथ ही बैठे थे, तो जब भी इसी मेरी सिस्टर का फ़ोन आया भी रिजल्ट आ गया, तो हमने उसी वक्त छलांग लगाई जैसे अपने बेकाबू हो गए। तो उसी वक्त गाड़ी स्टार्ट की तो हम इनके घर चले गए, तो मेरी आंखों में भी आंसू निकल रहे थे भी चलो बहुत बच्चे ने मेहनत किया, जे हक भी है इसको जे मंजिल तक पहुंचने का। तो आई प्राउड मेरे बच्चे के लिए बहुत प्राउड है हम। फिर कहते हैं चलो भगवान इसको खुशियां दे, बस हम यही चाहते हैं। स्ट्रगल बहुत किया है इसने। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਹਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਚਾਹਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਝਲਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਜ ਬਣੀ ਹੈ, 28ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਚਾ ਚੱਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਬੁਲੇਟਿਨ, ਜਲੰਧਰ।